compile time error. What is the compile time error? ACNO, non-static variable, can't be accessed, can't be reference from static area, right? Non-static variable ACNO can't be reference from static area. Point one. Okay. Good. So first, I need to create an object of which class? Account, SBI account. SBI account. Like, we'll discuss later how to create an object of a class. What is the internal mechanism? We'll discuss later. First, I need to create an object. Okay. SB1 is equals to new as name of the class, open parenthesis and close parenthesis. For this code, object will be created inside the memory. By using this code, object will be created inside the memory, and this is the reference variable that is pointing to that object which is available into the heap memory. I will discuss already. I have already discussed about in which memory area object are created. In which memory object are created inside the heap 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 area. memory of JVM memory. JVM. Okay. So this SB1 is pointing to this SB1 is pointing to this object. This is the code. Object available in the memory. Object will create while we execute the Java program. Then only this object will be created into the heap memory. And this SB1 is pointing to this object, right? Okay, that's good. So I'm creating. Suppose let's assume I'm creating. I'm using. I'm assigning some values like SB1 dot ACNO is equals to suppose 1 2 3 4 5 account number, right? SB1 dot ACNO dot account holder name to some Hasan Ali. Okay. Now again SB1 dot account balance some 440. Okay. Now I'm taking branch name. आप स्टैटिक उसी को बनाओगे जिसकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तब तो ठीक है। कोई एक भी चीज डिफरेंट हो गई एक भी ऑब्जेक्ट में, देन यू नीड टू क्रिएट नॉन स्टैटिक. ओके, ब्रांच नेम इज व्हाट, कपूरथला. Okay, all good. So if you want to create one more object, I will show same things with them draw using a diagram. Okay, so don't worry. Two, two, two. I'm changing account number like 6, like Surya Teja. Okay, I'm changing amount number and branch is what, Charbagh. Okay, I'm creating one more object. Creating one more object. Okay, that is what, object number 30. That is what, object number 30. Any confusion? I'm changing account number like save in Nampalli. है ना? And branch is what, suppose
कुर्सी हो, ठीक है ना। कितने ऑब्जेक्ट बने टोटल मिला के? सर 3 ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट बने। जस्ट अ मिनट, मैं आपको इसको ये चीज ड्रॉ मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। We have one small application that is called Zoom It. Okay. देखो फिर समझो क्या चीज है ना। तीन ऑब्जेक्ट समझ में आ रहे? 3 ऑब्जेक्ट कैसे बने हैं? यस सर, तीनों में डिफरेंट डेटा है सर। हाँ, एक मिनट में माउस निकाल है ना, प्रॉब्लम हो रही है। Okay. Now try to focus. Okay. First object, second object, third object. Okay. This is what? Heap memory. Heap memory. Okay. That's good. So first object is what? Pointing to SB1. This is what? SB1. And second object is pointing to this, and third object is pointing to this. Try to observe clearly. Then you can easily understand what will happen in the memory. Okay. Each object class name is what? SBI account. SBI account. Okay. SBI account. Each object class name is what? SBI. हमने सारे ऑब्जेक्ट SBI क्लास के बनाए ना, SBI account. क्यों भाई? यस सर। हाँ, don't get confused. SBI 1, SBI 2, SBI 3। तो समझ में आ गया भाई? यस सर। देखो ये चीज रैम पे आपको खोल के देख नहीं सकते ना, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, राइट? तो ये मैं इसको मेमोरी का इंटरनल आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने कितने ऑब्जेक्ट बनाए? पहला ऑब्जेक्ट बनाया SB1 रेफरेंस वेरिएबल के साथ, वो इसको पॉइंट कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है। आपने लिखा न्यू SBI अकाउंट। तो जैसे ही न्यू SBI अकाउंट लिखा आपने, ध्यान से समझना, जैसे ही आपने न्यू SBI अकाउंट लिखा वैसे ही क्या हुआ, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना। और ऑब्जेक्ट बनते टाइम उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट हो गई? उस क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल, यानी उस क्लास की स्टेट। ऑब्जेक्ट की जरूरत है स्टेट के लिए। अगर स्टेट नहीं है किसी भी चीज की तो ऑब्जेक्ट बनेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी कोई स्टेट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है भाई। स्टेट मींस टेल समथिंग अबाउट दैट एंटिटी। सब स्टेट क्या है? स्टेट इज व्हाट? अकाउंट नंबर। स्टेट इज व्हाट? अकाउंट होल्डर नंबर। स्टेट इज व्हाट? अकाउंट बैलेंस। स्टेट इज व्हाट? ब्रांच नेम। अगर ये कुछ चीजें नहीं होती सपोज करो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अगर स्टेट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्टेट, राइट? Yes. ओके, जैसे ही सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे, इफ आई एम ट्राइंग टू राइट दिस पीस ऑफ कोड, try to understand clearly account. If I write like this, SBI account and open curly braces, open close, okay? सबसे पहले क्या होगा, उस क्लास की जो स्टेट है, उस क्लास की स्टेट क्या है? टेल मी प्लीज। अकाउंट नंबर क्या है? Number account holder name. हाँ, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। इंटीजर टाइप क्या है यार? यही तो दिक्कत है यूनिट 1 नहीं पढ़ने के अच्छे से। नहीं समझ में आएगा भाई अगर ये सब चीज अच्छे से नहीं पढ़ के रखोगे। पहला यूनिट Zero होती है. जीरो होती है, राइट? ये चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेमोरी में दिख रहा है सब कुछ जीरो, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वेरिएबल क्या है? अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है। इस टाइप का स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास। क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू नल। क्लास, इंटरफेस, इनम, एरे, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू नल। ठीक, नेक्स्ट वेरिएबल क्या है? अकाउंट बैलेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकाउंट बैलेंस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? इंटीजर। इंटीजर नहीं भाई, जीरो। डिफॉल्ट वैल्यू 0.0. 0.0। अकाउंट बैलेंस जो है वो डबल टाइप का है। डबल फ्लोट डबल होता है टाइप से, राइट? नेक्स्ट, ब्रांच नेम। ब्रांच नेम क्या है? स्ट्रिंग टाइप है। ब्रांच नेम क्या है? स्ट्रिंग। ब्रांच नेम, स्ट्रिंग मींस एक क्लास। एक क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू नल। जब आपने इतना काम किया, जब इतना कोड लिखा, तो ये मेमोरी में इतना काम हो गया, राइट? समझते रहना, ये कितना काम हुआ जब आपने लिखा न्यू एसबीआई अकाउंट। टी मिसिंग है, ठीक है? टी भी और लगी हुई है यहाँ पर। आपने क्या लिखा? न्यू एसबीआई अकाउंट, तब ये इतना काम हुआ, राइट? उसके बाद क्या हुआ? उसका जो ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट का सपोज बना कोई एड्रेस है, वो एड्रेस 2EFABC, सपोज दैट 1 2, ये एड्रेस है। ये एड्रेस जाके, ये एड्रेस किस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है? एसबीआई अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे? यू नीड टू क्रिएट वन वेरिएबल लाइक SB1। आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट जो रखा है वो किस एड्रेस पर रखा है? तो दिस इज व्हाट एड्रेस 2EABC123 समथिंग, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, राइट? अब उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा? द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट? सेम क्लास नेम। सेम क्लास नेम एसबीआई अकाउंट। सो आप क्या लिखोगे? आप, मैं तो लिख चुका हूं, ठीक है ना? SB1 इक्वल टू समथिंग, राइट? तो ये जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, दैट ये एड्रेस किसके पास पहुंच जाएगा? अगर आप प्रिंट कराओगे SB1 को तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा, बट ये गारंटी नहीं है ये एड्रेस, ये तो अजम्पशन है कि ये एड्रेस होगा, राइट? Yes. ये SB1 क्या है? वेरिएबल। इसका किस टाइप का वेरिएबल है? इसका डेटा टाइप क्या होगा? कौन बताएगा? प्रोग्राम में SB1 का डेटा टाइप क्या होगा? एसबीआई अकाउंट। हाँ बताओ, SB1 का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? एसबीआई अकाउंट। SBI अकाउंट, क्योंकि SB1 जो है वो नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव क्या होल्ड करते हैं? एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किस टाइप का डेटा टाइप होगा? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? SBI अकाउंट का। सो यू नीड टू डिक्लेयर SB1 वेरिएबल ऑफ टाइप SBI अकाउंट। अगर आपको एड्रेस स्टोर करना होता किस ऑब्जेक्ट का? सपोज सम अदर क्लास का, तो वो वेरिएबल किसी अदर क्लास टाइप का होता, राइट? अंडरस्टैंड? यस सर। दैट्स गुड। अब देखिए लाइन, जब ये लाइन चली, ट्राई टू ऑब्जर्व, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो SB1 का मतलब ये वाला वेरिएबल। यहाँ तीन ऑब्जेक्ट हैं। SB1 किसको पॉइंट कर रहा है? कौन बताएगा? अगेन जस्ट SB1, SB2,
SB3, ठीक है। SB1 इसको पॉइंट कर रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, SB2 इसको पॉइंट कर रहा है, SB3 इसको पॉइंट, राइट। कंफ्यूजन है कुछ भी अभी भी? नो सर। हाँ, ये पहली लाइन चली, पहली लाइन चलने के बाद SB1 पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लिखा हुआ SB1 डॉट अकाउंट नंबर। तो क्या होगा SB1 यानी ये वाला, तो यानी किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? इसमें अकाउंट नंबर अभी क्या है 0, इस 0 को हटा के क्या कर दो आप 1 2 3 4 5 0, क्या कर दो, अब 0 नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो गया अकाउंट नंबर कितना हो गया, बोलो भाई। 12345। ठीक है, गुड। इसी तरीके से SB1 डॉट अकाउंट नेम, SB1 इज व्हाट, ये इसका अकाउंट नंबर यहाँ होगा या यहाँ पर होगा, SB1 का अकाउंट नंबर या यहाँ पर होगा, नहीं सर, ऊपर वाले में होगा। ऊपर वाले पहले में प्ले में होगा। हाँ राइट। तो यू नीड टू चेंज नल, नल हट जाएगा, मैं नल भी दिखाऊंगा, पहले नल प्रिंट करके दिखाऊंगा ना, उसके बाद आपको ये वैल्यूज दिखाऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट नेम क्या होगा इसका, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। यस सर, हसन अली। ओके, नेक्स्ट अकाउंट बैलेंस, SB1 डॉट अकाउंट बैलेंस, SB1 डॉट अकाउंट बैलेंस पहले ऑब्जेक्ट में होगा, दूसरे में या तीसरे में? पहले में सर होगा। पहले में होगा, ये 0.0 हट जाएगा और क्या आ जाएगा अकाउंट बैलेंस में 4563.34। 4563 रुपए सम 34 पैसे। कहाँ लिखा गया यार, कोई बात नहीं, दोबारा सर नीचे लिख दीजिए 4563.34, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान से समझना, ब्रांच, ब्रांच क्या हो जाएगी कपूरथला, यानी कि ये हट जाएगा। भाई एक वेरिएबल में एक ही डेटा तो रहेगा एक टाइम पे, यस सर। ऐसा तो नहीं दोनों डेटा रह जाएंगे ना। कपूरथला, कपूर, समझ गए होगे क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। यस सर। तो ये काम हो गया पहले वाले ऑब्जेक्ट का। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे आते हैं, राइट। SB2 पे, SB2 का अपना कोई एड्रेस होगा, सपोज उसका एड्रेस 3 4 ABC समथिंग लाइक 1 2 कुछ एड्रेस है इसका, है ना। उसके बाद सेम यही काम इसमें भी होगा, जल्दी से लिख देते हैं, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा काम। सबसे पहले जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी 12346 सर अकाउंट नंबर, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर 19 जब एग्जीक्यूट करेगी तब क्या होगा, अकाउंट नंबर 0 होगा, अकाउंट होल्डर नेम नल होगा, जल्दी बोलो जल्दी, अकाउंट बैलेंस 0.0 होगा, राइट। एंड देन ब्रांच नेम, मैं शॉर्टकट में लिख दूं वेरिएबल के नाम, ब्रांच नेम इज व्हाट जावा, सॉरी नल, ठीक है ना। फिर ये लाइन चलेगी, ये वाली लाइन, फिर लाइन नंबर 20 21 22 23, 20 21 22 23 क्या करेगी, SB2 को पॉइंट कर रहा है ना, 20 21 22 23, तो SB2 में जाएगा और इन वेरिएबल्स में चेंजेस कर देगा, राइट। तो क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा 12346 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। तो ओवरऑल ये बताओ समझ में आ गया केस क्या है? यस सर। तो अगर मैं वैल्यू ये असाइन कर रहा हूँ, इससे पहले अगर मैं वैल्यू प्रिंट करा दूं, सपोज करो मैंने ये असाइनमेंट नहीं किया, ठीक है, और मैंने लिखा SB1 डॉट अकाउंट नंबर, तो क्या प्रिंट करेगा 0। SB1 डॉट ब्रांच नेम क्या प्रिंट करेगा नल 0.0। ठीक है, नल समझ में आ गया ओवरऑल क्या चीज है। यस सर। ओके, अभी स्टैटिक पे भी आएंगे, है ना। तो ये तो सीधी कहानी नॉन स्टैटिक, प्रिंट स्क्रीन देख के मैं ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। है ना, ओके दैट्स गुड। हम अब पॉइंट पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग पे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इस प्रोग्राम की काफी सारी दिक्कतें हैं इस प्रोग्राम में, जो भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। इस प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने सपोज करो तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ बना लिया, एक आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। कोड नहीं बदल रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक। तीन ऑब्जेक्ट बना दिए मैंने, लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
Okay, suppose I'm writing I'm account number. Account number is what? SB1. अभी SB1 की बात कर रहे हैं, SB not ACN, है ना? And then tab space थोड़ा सा स्पेस ले लेगा, है ना, 6 टाइम स्पेस. And then after account number के बाद account holder name, AH name. ठीक है ना? मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई इशू? AH name लंबा हो जा रहा है, सिर्फ कितना लिख रहा हूँ, नेम इक्वल टू, ये तो स्ट्रिंग है, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना. अब यहाँ वेरिएबल प्रॉपर लिखना पड़ेगा, वेरिएबल में शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई, है ना. ओके, दैट्स गुड. concatenation and space, tab space and a balance, bal equal to, so concatenation sb1 dot account balance. Try to observe very clearly. अगर आप वो डायग्राम समझ गए हैं तो अब आप रिजल्ट बता देना, है ना. and again then tab space and branch name, b name, branch, ठीक है ना. concatenation sb1 dot branch. Any issues? इस लाइन में क्या लिखा है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर. इस लाइन को मैं 3 बार पेस्ट कर रहा हूँ. बस चेंजेस क्या करेंगे? SB2. सर इसको लूप के द्वारा भी चला सकते हैं ना सर? है भाई, सर इसको लूप के द्वारा भी चला सकते हैं. लूप के द्वारा ये रेफरेंस वेरिएबल बदल रहा है ना, लूप के द्वारा कैसे चला पाओगे, रेफरेंस वेरिएबल बदल जा रहे हैं. अच्छा, नहीं हमने लगा कि सर चला सकते हो. नहीं, काम सब हो जाएगा, वो मैं करके दिखाऊंगा. अभी फिलहाल आप यहाँ पर सोचो, लूप कोई बहुत बड़ा मतलब वो काम नहीं है, वो तो मैं कर दूंगा, है ना. लूप के थ्रू भी कर देंगे, अलग मेथड बना के. अभी तो तुम इस प्रोग्राम की दिक्कतें समझो, इसमें बहुत सारी दिक्कतें है, इसका सॉल्यूशन फिर उसके बाद भी दिक्कत आएगी, फिर उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना. अभी अज्यूम करो मैंने ये काम कर दिया. क्या काम है ये? मैंने पहली लाइन में पहला ऑब्जेक्ट, दूसरी लाइन में दूसरा ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, तीसरी लाइन में तीसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल. राइट? यस समझ में आया ये? यस सर. क्या आउटपुट देगा अभी इन तीनों लाइन की बात करूं मैं तो? 0 नल और सर डिफॉल्ट वैल्यूज दे दो. यस सर. सबकी डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी. राइट? अंडरस्टैंड? नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट. राइट, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा. ओके, गेटिंग वन एरर. व्हाट इज द एरर? इन क्लोज लिटरिंग लिटरल्स. 28 और 33 नंबर. 28 लाइन नंबर 28 put is missing. 33 is also done. Okay, no issue. Okay, now again going to compile. But not sorry, अभी भी प्रिंटिंग रह गई है क्या ये? ठीक है. Okay, go. You have to observe the output only. That means क्या हुआ? क्यों भाई? 0 नल. You are satisfied with this output or not? यस सर. Okay, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मेमोरी बना. किसी को कुछ डाउट इस आउटपुट से ही? Okay, let any issues? Tell me please. No sir. ये नेम स्पेस बैकस्लैश p. नॉट वर्किंग, पता नहीं ये बैकस्लैश p क्यों नहीं काम कर रहा है. ओके, नो इशू, ठीक है ना. अब पॉइंट करते हो तीनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर एड्रेस प्रिंट कराओगे तीनों का अलग अलग प्रिंट करेगा. SB1 SB2 ऐसा मत समझना कि मैं एक आपको वैल्यूज लग रहा है कि एक ही जगह से आ गई, ठीक है ना. एक जगह से नहीं आई है. मैंने जो रिप्रेजेंटेशन कराया उसको प्रॉपर्ली समझ के रखो, ठीक है ना. दिस इज व्हाट डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट. देखो भाई, हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग वैल्यूज है. ये वैल्यूज क्या है? एड्रेस है. एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल. राइट? Yes. हम इस एड्रेस पे भी खेलेंगे आगे चल के, ठीक है ना. ध्यान रखना, इस एड्रेस पे भी बहुत कुछ खेल होगा, तो अच्छे से समझ कर रखो. ये एड्रेस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल. ओके, दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू चेंजिंग समथिंग इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट. एनी इश्यूज टिल नाउ? ये मैं करके दिखा चुका हूं डायग्राम में. आई एम चेंजिंग द वैल्यू इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं बताओ? कौन से ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे? फर्स्ट सर तीनों में होंगे सर. तीनों इस लाइन से तीनों में हो जाएंगे.
सपोज करो, सपोज ट्राई टू। First of अब यहाँ अभी इस लाइन तक, लाइन नंबर 32 पे क्या आउटपुट रहने वाला है बताओगे कोई? ऑब्जेक्ट 1 की स्टेट मैंने सेट कर दी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वैल्यू आएगी Sir, 30 SBI SB1 में वैल्यूज आएंगे और SB2 और 3 में डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट Yes, sir. वैल्यू आएंगे। राइट। अभी भी किसी को कंफ्यूजन? No, No, sir. That's it. Try to observe. देखो SB1 में प्रॉपर वैल्यूज आ रही हैं आपकी, एंड 2 Yes, और sir. 3 व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू? 2 और 3 किसके Default साथ आ रहा है? value. डिफॉल्ट के साथ आ रहा है, राइट? yes, sir. एनी इश्यूज? यस ओके। No, sir. सो अब मैं इन तीनों को सबसे लास्ट में प्रिंट कर दूं क्या फिर ऐसे ही चलने दूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू प्रिंट सेम। इस केस में क्या होगा? सर वैल्यूज प्रिंट होगी किस की? One. ऑब्जेक्ट की 1 और 2 Sir, की। yes. 1 और 2 की। 3 ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट के साथ आएगा, राइट? यस सर। ओके, दैट्स गुड। एनी इश्यूज? देखो दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट चेंजिंग वैल्यू के साथ आ रहा है। देखना ये कॉपी वैल्यू नहीं आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व, दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। अभी स्टैटिक पे भी आऊंगा इसी में, है ना? ओके। तो ओवरऑल मैं अब यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पेस्ट कर दूं सबसे लास्ट में, तब क्या होगा? तीनों की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ना? यस सर। यस तीनों सर। ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्रिंट होगा। लेट्स राइट अ कंप्लीट कोड। ओके, यू अंडरस्टैंड? देख लो तीनों के डिफरेंट वैल्यूज के साथ आ रहा है। यस ओके, मैं ये थोड़ा बिखरे हुए कोड को सही कर लेता हूँ, है ना? ये समझने के लिए था। बस यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रिंट होने दो पहली बार में, फिर बार बार प्रिंट नहीं कराएंगे हम, सबको लास्ट में प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना? ये सब समझने के लिए था। ओके, एनी इश्यूज? No, sir. एक बार अब लास्ट में देख लो। पहले तो स्टार्टिंग में डिफॉल्ट वैल्यूज, उसके बाद मैंने एड्रेस प्रिंट कराया, उसके बाद ये वैल्यूज प्रिंट आएंगे। पहले डिफॉल्ट के साथ आया पूरा केस, फिर मैंने क्या किया, एड्रेस प्रिंट करा के दिखा दिया आपको, और फिर उसके बाद तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज। ओके, अब इस प्रोग्राम की प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना? मैं इन 3 लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 3 लाइन तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए बनाई थी, यूजलेस है वैसे तो। इनका प्रिंटिंग जो है वो यूजलेस है, राइट? तो यू कैन कमेंट आउट, और अगर आपको लगता है लिखे रहने चाहिए तो लिखे रहने दो। ओके, बट ये 6 लाइनें यूजलेस, इनका कोई पर्पस नहीं है, राइट? नेक्स्ट, अब इस प्रोग्राम की प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना। अगर आपके पास सपोज करो एसबीआई के पास 1000 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट? सॉरी, स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एसबीआई अकाउंट में फिर कोई नया अकाउंट होल्डर ऐड होगा, तो फिर से क्या होगा? फिर से ये इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगी उसकी। यस सर, एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा। सपोज इसी प्रोग्राम के हिसाब से सोचते हैं, हमारे पास एसबीआई अकाउंट के 50 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है? 50। लेट्स अज्यूम वी हैव 50 ऑब्जेक्ट, राइट? आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 50 ऑब्जेक्ट, ठीक 50। है? और हर ऑब्जेक्ट में सपोज करो चार एट्रीब्यूट है। हर ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट है? हर 4 ऑब्जेक्ट के 4 एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट होते हैं ऑब्जेक्ट, है ना? और एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट। तो हर ऑब्जेक्ट के 4 हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको 50 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं? ये 3 है। 50 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट के लिए 4 बार लाइन लिखनी है। 50 के यस लिए सर। कितने बार लिखोगे ये स्टेटमेंट? ये एक ऑब्जेक्ट के लिए 4 स्टेटमेंट 200 लिखे जा बार। रहे हैं, 200 बार सर। फॉर वन ऑब्जेक्ट हाउ मेनी लाइंस वी आर क्रिएटिंग? सर 200। The 4 4 लिख रहे हैं वन ऑब्जेक्ट के लिए, 4। अगर अब 50 ऑब्जेक्ट होंगे इस तरीके से कितनी लाइन लिखी जाएंगी?
200. हाँ 50 फोर 200, राइट, गुड। तो 200 लाइन लिखने की जगह पे अगर आपको मैं कहूँ ये कोड आपको 30 लाइन में खत्म कर देना है, तो दिस अप्रोच इज वेरी गुड, इज गुड और राइटिंग 200 लाइन, और यू नीड टू राइट 30 लाइंस ऑफ कोड। 30 lines. सो लेट्स समराइज दिस थिंग्स। समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ? सर लूप चलाएंगे आप? हाँ, सपोज दैट लूप पे नहीं आ रहा है भाई, लूप नहीं चलाएंगे, लूप की कहानी नहीं है भाई, यहाँ लूप सोचो ही मत, लूप चलाएंगे, लूप कहीं पिक्चर में आएगा ही नहीं, समझे? बगैर लूप के खेल चलेगा। ट्राई टू ऑब्जर्व सर क्लियरली। ठीक, सपोज करो आपके पास 50 ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, 50 ऑब्जेक्ट वाली तो लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ये वाली लाइन तो, बट आप ये लाइन जो है रिपीटेडली नहीं लिखी जाएगी, ये लाइन, दिस लाइन वी आर गोइंग टू रिपीटेडली यूज, राइट। अगर है 50 ऑब्जेक्ट है तो आपने क्या करा, 50 चौक 200 बार ये लाइन लिख रहे हो, राइट, समझ रहे मेरी बात को? ऐसे अब ये यस मेरे सर। पास कितने ऑब्जेक्ट है, तीन के लिए हमने 12 स्टेटमेंट लिखे। अब इनको अगर मैं कहूँ आपसे एक लाइन में हो जाए तो कैसा रहेगा? सर बढ़िया रहेगा, पर सर दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ लूप, राइट। तो मैं उसको दूसरे प्रोग्राम में बनाऊं या इसी में बना दूं? इसी में बना दीजिए। इसी में सर बना दीजिए। Okay, so I'm developing one method that is what void display information. अच्छा Display information. Display SBI count information. You always try to develop a function according to the Java conventioning rule, right? Display SBI का S कैपिटल, account का A कैपिटल, information का I कैपिटल, okay? यस सर। डिस्प्ले एसबीआई अकाउंट इन्फॉर्मेशन, राइट। फिर क्या करोगे आप, ट्राई टू ऑब्जर्व एंड आई एम डेवलपिंग वन मोर फंक्शन एज वेल। और जो डिस्प्ले करने के लिए आप लोग जो चीज यूज कर रहे हो डिस्प्ले करने के लिए, ये भी आप ऐसे सपोज करो आपको हर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए मान लो मैंने कितनी लाइन लिखी है, एक लाइन लिखी। इस तरीके से अगर 50 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराओगे तो कितनी नंबर ऑफ लाइन लिखी जाएंगी, 50 लाइन लिखी जाएंगी। यस सर। Yes. I am converting this 50 line of code into single line. Try to observe with the help of functions. Okay. So डिस्प्ले, एक फंक्शन डिस्प्ले होगा जो डिस्प्ले करेगा, एसओपी लगाएंगे। एक फंक्शन होगा सेट एसबीआई अकाउंट डिटेल, एसबीआई अकाउंट डिटेल। ओके, एनी इश्यूज? नो सर। हाँ, मैं इन 6 लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 6 लाइन तो वैसे ही हम लोग देखने के लिए बनाई थी, इन साइड की बात होती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आई नीड टू पास, try to observe clearly, I am passing all 4 parameters inside the account. What are those parameters? Parameter is what? First is ACN, ACN, ठीक है। Second parameter what? AC name. Third parameter is what? Double bell. Fourth parameter is what? Branch. Right? I'm developing one function and putting these values. Try to observe. I'm using this variable name inside the, और दिस इज व्हाट लोकल वेरिएबल ACN। देखो जिन लोग के पैरामीटर का खेल क्लियर नहीं भाई, उन लोग के लिए मैं पैरामीटराइज चीजें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत आगे की चीजें जा चुकी है, ये सब चीजें पहले से पढ़ के रखना पड़ती है ना, कि पैरामीटर कैसे पास किए थे। डोंट गेट कंफ्यूज, C++ प्रोग्रामिंग में मैंने अच्छे से समझा रखा था, क्योंकि पूरा खेल आगे चल के आपको फंक्शन और मेथड के रूप में ही मिलने वाला है ना, कुछ भी नहीं इन पैरामीटर में, इजी कहानी है ये। कहीं पर डाउट लगे पूछ लेना, है ना। राइट, ओके, ये आपको 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनको 3 लाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको पहले मैंने कहा भैया sb1 डॉट
कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट मतलब ये कोड है ही नहीं, ठीक है ना। I'm converting this thing into single line. SB1 dot. What is the name of method? This is static method or non-static method? Non-static method. अगर ये static कर देते तो क्या दिक्कत आती? तो दिक्कत ये आती कि static के अंदर, static method के अंदर non-static variable ये डायरेक्टली यूज नहीं होंगे, तो हमको फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पर, राइट। इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, नॉन स्टैटिक। अगर मैं इसको स्टैटिक बना देता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये स्टैटिक होता तो स्टैटिक के अंदर क्या होता, नॉन स्टैटिक डायरेक्टली अलाउड नहीं होते, तो ये एरर देता। तो हमको फिर से इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, किसका, अकाउंट वाली क्लास का, राइट, एसबीआई अकाउंट का। तो वो चीज सही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं मेरे पास, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं दोबारा ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों बनाऊं, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ से स्टैटिक नहीं लगाया। मींस इसको कैसा डिक्लेयर कर दिया, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल अलाउड है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यस सर। तो मैं इन 4 लाइन को कोड को सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, SB1, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, सेट एसबीआई अकाउंट डिटेल एंड आई एम पासिंग 4 पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या था, पहला पैरामीटर अकाउंट नंबर, दूसरा अकाउंट कस्टमर नेम, तीसरा बैलेंस, चौथा ब्रांच। ओके, सो आई एम पासिंग दिस वैल्यू एज ए पैरामीटर। ओके, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 and value 4. वैल्यू 4। ओके, एनी इश्यूज? इन 4 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम सोच रहे होगे इन 4 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कहाँ किया, यहाँ तो 4 लाइनें लिख दी ना, वेरी गुड। लेकिन ये 4 लाइनें जो लिखी हैं ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिखी हैं, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए लिख गई। देखो मैं फिर से इन 4 लाइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या फिर दोबारा 4 लाइन लिखी जा रही है उसकी जगह पे? प्लीज लेट मी नो, प्लीज टेल मी। 2, 3, again I am commenting out this piece of code। क्या मैं बार बार 4 लाइन लिखना, आपके पास 50,000 ऑब्जेक्ट हैं, आपकी ये 4 लाइनें काम की हैं नहीं, यही 4 लाइंस। नो आपको सर, क्या करना है, मेथड कॉल कर देने, मेथड कॉल करने हैं। क्या करना है, मेथड कॉल हो रहा सर। ठीक है ना। कोई इश्यूज बताओ। तो इनको मैं कमेंट रखूं या हटा दूं यहाँ से, जल्दी बोलो। सर कमेंट रहने दे सर, समझने के ठीक है, लिए। ऊपर कर दे रहे हैं ना इनको, यहाँ पर, यहाँ कर दे रहे हैं। इस मेथड को सर कहीं से भी मतलब कॉल कराएंगे फंक्शन को, तो ये 4 लाइनें वो एग्जिट आ जाएंगी वहीं पे। हाँ हाँ। यस सर। अब आपको लग रहा है कोड छोटा हो गया, ये इसको मत समझो कि ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये यस ऐसे ही, सर। अब ये कमेंट ही हो गया तो ये कोड रहा कहाँ पर, ठीक है। बट ये नंबर ऑफ लाइन काउंट कर रहा है, तो आप सोच रहे हो नंबर ऑफ लाइन तो उतनी है, बट नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इतनी एक्चुअली इन लाइंस को, ये लाइन 12 लाइन थी, राइट। 12 लाइन को कितनी लाइन में समेटा, आप समझिए 3 लाइन ये लिखी गई हैं और 4 लाइन ये लिखी गई हैं, 7 लाइन्स। बट अगर मैं अभी 2-3 ऑब्जेक्ट और बना दूं तो क्या होगा, ये हर ऑब्जेक्ट के 4 लाइनें तो नहीं बढ़ेंगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1 लाइन बढ़ेगी, ये राइट। यस सर। समझ में आ रहा है क्या, Yes, मतलब sir. ये नंबर ऑफ कोड छोटा हुआ, ये चीज समझ में आई है नहीं? यस सर। यस सर, आई है सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, देख पा रहे हैं आप? यस इन सर। 3 लाइन की जगह पे सपोज करो मैं इस पूरे पीस ऑफ कोड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ SB नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप सोचोगे SB1 है, SB2 है, वो SB1 क्या लोकल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, लोकल। लोकल कहाँ तक अवेलेबल रहेंगे, लोकल वेरिएबल ये लोकल है, इनका स्कोप कहाँ है, इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक। इस बाउंड्री के बाहर लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस, नहीं अलाउ है। लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस।
तो आप डायरेक्टली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन डायरेक्टली कहाँ यूज करोगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल को नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर। अब ध्यान से समझना, ओवरऑल प्रोग्राम समझ में आएगा? लिखा हुआ क्या है? Yes, मैं sir. Yes, इन sir. लाइंस को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके, तो आप समझिए कि ये लाइनें लिखी हुई नहीं है, उसके बाद कोड आपको काफी छोटा लगेगा। ओके, तो अब ये आप समझिए, ध्यान से समझना पहले अच्छे से। ये मैंने SBI अकाउंट डिटेल किस ऑब्जेक्ट पे कॉल किया? SB1 पे। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल जो काम करेंगे वो SB1 के ऊपर काम करेंगे। ध्यान से समझिएगा भाई। आप सोचेंगे ये मेमोरी में किस ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, यानी तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास, SB1, SB2, SB3। तो अकाउंट नंबर में जो अकाउंट नंबर सेट होगा तो कौन से पहले वाले ऑब्जेक्ट में जाएगा, या दूसरे में जाएगा, या तीसरे में जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत ये है कि ये जो मेथड कॉल हो रहा है ये किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है। पहला मेथड पहले SB1 पे कॉल हुआ, तो जो ये प्रॉपर्टी जा रही है, ये वाली प्रॉपर्टीज, ये पहले ऑब्जेक्ट में सेट होगी। ये कैसे डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन दिस रेफरेंस वेरिएबल। एनी डाउट? नो सर। देखो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि ये अकाउंट नंबर तो 3 जगह मेमोरी पहुंचा, अकाउंट नंबर 3 जगह, अकाउंट होल्डर 3 जगह, तो ये वाला अकाउंट जो है कौन से वाले ऑब्जेक्ट को पहचानेगा? SB1 को पहचानेगा या SB2 को? तो ये मेथड किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है ये डिसाइड करेगा। ये मेथड पहली लाइन में, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये वाला मेथड कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ? पहले ऑब्जेक्ट पे। तो ये बताएगा कि तुम अकाउंट नंबर पहले वाले ऑब्जेक्ट का काम करोगे, राइट? यस Yes, सर। sir. एनी Yes. इश्यूज? No, sir. नो सर। इजी है, कुछ भी नहीं। दूसरा वाला आप जब हमने कॉल किया तब ये बताएगा कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे आपको अकाउंट होल्डर नहीं चलेगा, राइट? दैट्स वेरी गुड। आई एम नाउ कॉलिंग Yes, sir. मेथड SB1 डॉट दिस समझ में आया नहीं भाई? यस सर। ओके, सबसे पहले तो ये पुराना आउटपुट है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो तीन मेथड कॉल होंगे 1 बाय 1 इनपुट करने के लिए, ठीक है ना? तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। देखो SB1 2 3, फिर तीनों को मैंने डिस्प्ले कराने के लिए कॉल किया। अभी हालांकि इसमें स्टैटिक वाली बातें काफी बची हुई हैं, एक्सप्लेनेशन लंबा है प्रोग्राम का, ठीक है? नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? इस आउटपुट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट एड्रेस प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा? तीनों 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएंगे। तीनों 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट? तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है? तीनों कैसे ऑब्जेक्ट आएंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ट्राई टू ऑब्जर्व दीस थ्री आर डिफरेंट और सेम है या डिफरेंट है? सर Different. डिफरेंट है। डिफरेंट। ओके, सपोज करो धोखे से मैंने कॉल कर देता, मैंने बार बार यहाँ लिख दिया, कौन बताएगा मुझे अब क्या आएगा आउटपुट? मैंने धोखे से सर सेम वन तीनों जगह कर दिया, और मैंने यहाँ पर किया 1, यहाँ किया 2, यहाँ किया 3। क्या कौन बताएगा आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बताओ, टाइम कम है, मेरा भी सर। ऑफिस का टाइम। तीन आउटपुट आएंगे सर, तीनों के सेम आउटपुट आएंगे। नहीं ऑब्जेक्ट वन नहीं, वन पढ़ना सिर्फ। क्लियर नहीं हुआ बस। सर इसमें जो लास्ट वाली ऑब्जेक्ट वैल्यू है, हाँ बताओ सर बताओ। सर जो लास्ट वाली वैल्यू है ये ओवरराइट कर जाएगी पहले की दोनों वैल्यू में। ठीक है, तो अब मैंने SB1 को कॉल किया, पहले डिस्प्ले वाले को, SB1 का डिस्प्ले, तो क्या तो आएगा? सर लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 2 SB2 को 3 कॉल किया तो क्या आएगा? सर नल। डिफॉल्ट वैल्यू। नल मत बोलो भाई। डिफॉल्ट, सॉरी सर, डिफॉल्ट वैल्यू। SB3 को कॉल किया तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू। वैल्यू। सबको समझ में आया भाई, सब लोग को? यस सर। ये सब Yes. क्या होगा? पहले ये वैल्यू थी पहले वाले ऑब्जेक्ट में, फिर ये ओवरराइड हुई इससे, फिर ये ओवरराइड हुई इससे, तो फाइनली पहले वाले ऑब्जेक्ट में ये हो जाएगा। और दूसरे ऑब्जेक्ट में मैंने सेट ही नहीं किया, तो यानी डिफॉल्ट वैल्यू। तीसरे ऑब्जेक्ट में सेट नहीं किया, डिफॉल्ट वैल्यू। भाई बोलो, समझ में आया नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड। पहले वाले ऑब्जेक्ट में ये वाली वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 7 लाइक दैट, ओके? एंड इन दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू। ट्राई टू ऑब्जर्व। अभी भाई बहुत चीजें बची हैं बीजेस प्रोग्राम को बताने के लिए, ठीक है?
टाइम कम है, आप इसी प्रोग्राम को कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे इसी प्रोग्राम को हम लोग और एलिबोरेट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। यस सर। थैंक यू ऑल। जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं क्योंकि मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं? तो भाई यस सर, आज की ऐसा ही क्लास चलना है, में मामला जाता सीन अच्छा चल रहा लगा है। सर। Without interest you can't learn anything. तो आज जो प्रोग्राम बना दैट इज व्हाट एसबीआई क्या था प्रोग्राम? तो यार मैं SBI अलग अकाउंट। अलग बैचेस में बनाता रहता हूँ। मैंने प्रोग्राम फाइल का नाम क्या लिखा था? एसबीआई अकाउंट। यस सर। एसबीआई अकाउंट, तो ये है एसबीआई अकाउंट, ठीक है ना। इसी को सेंड करता हूँ, आप लोग फिर से ट्राई करके समझने की कोशिश करना और अच्छे से डिटेल में। अभी तो यस सर। स्टैटिक के साथ इसको बताना है, स्टैटिक के साथ इंस्टेंस क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर होना, नहीं तो जावा में कभी लाइफ टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक नहीं समझा। यस और ये सर। पिछले आने वाले 15 दिन तक यही स्टैटिक नॉन स्टैटिक में खेल चलेगा, चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। आप तो जो खत्म हो गए, कोई चीज जावा में खत्म नहीं होती, अब आगे के लिए चालू हो जाती है वो।